آپ کو بتائیں کہ لاہور سے فوگ چھٹ چکی ہے، سردی کی شدت برقرار ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 173 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ باغوں کا شہر آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ فیز 8 DHA 466 جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 453 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی کاؤنسلیٹ 269 اڈا پلاٹ میں آلودگی کی شرح 254 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ جی کومل۔ جی بالکل، لاہور شہر میں بادلوں سے جو فوگ ہے وہ چھٹنے لگی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سورج نے کرنیں بکھیرنا بھی شروع کر دی، یعنی کہ آسمان پر سورج نمودار ہونا شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی واضح کمی آ رہی ہے۔ ہواؤں کا سلسلہ تاحال جو ہے وہ برقرار ہے اور بہرحال ہوائیں چلنے کی وجہ سے سردی میں اضافہ ریکارڈ بھی کیا جائے، یعنی کہ وقفے سے کبھی سردی کی لہر ایک دم سے لاہور شہر کے باسیوں کو محسوس ہوتی ہے اور شدت واضح ریکارڈ کی جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی ہوائیں تھم جاتی ہیں، سورج کی کرنیں جو ہیں وہ نکھرنے کی وجہ سے شہر لاہور میں پھر سردی کی شدت میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شہر میں موجودہ ٹیمپریچر 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ماہرین موسمیات کی جانب سے بارشوں سے متعلق پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے، اور آج تیسرا روز ہے اور ابھی تک بارش نہیں برسی۔ لاہوری تھوڑے سے پریشان بھی ہیں کہ بارش کی پیشگوئی تو ہو گئی لیکن بارش کیوں نہیں ہو رہی، تو لہٰذا ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، 6 جنوری تک بارش برسے گی ضرور، ایسا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ٹیمپریچر 13 ہے، زیادہ سے زیادہ 18 تک جائے گا، کم سے کم 11 رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے تقریباً 93% ہے۔ ہواؤں کی رفتار 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وقفے سے سورج اور بادلوں کے درمیان حسین مناظر جو ہیں وہ لاہوریے دیکھیں گے، اور یہ دلکش مناظر لاہوریوں کو روح کو بھی مزید سکون بخشیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں فضائی آلودگی کی شرح کے حوالے سے، تو AQI کی مجموعی شرح اس وقت 173 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ لاہور کے متعدد علاقوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت فیز 8 DHA 466 ہے اور جوہر ٹاؤن 453 ہے، US کونسولیٹ 279 ہے اور اڈا پلاٹ 254 ہے، عسکری ٹن 246 ہے، CERP آفس 185 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ باسیوں کو کہا جا رہا ہے سردی آ گئی ہے، احتیاط کریں، انجوائے کریں، لیکن اپنی حفاظت کو پہلے یقینی بنائیں، گرم ملبوسات زیب تن کریں، اور اب جیسے کہ سردی کے ساتھ ساتھ سورج کرنیں بکھیرتا ہے اور یہ والی کرنوں میں بیٹھ کر کنوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بہت حسین ہے، بہت بہترین۔ بہت شکریہ کومل اسلم۔ لاہور ڈیولپمنٹ کی 59 ارب کی 115 میں سے 80 اسکیموں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6 زونز میں سے داتا زون اور نشتر زون کا کام سر فہرست ہے۔ داتا گنج بخش زون کی 967 گلیوں پر 3 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے کام شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے بسام سلطان سے۔ جی بسام، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، شہر میں جو ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ پلان جو تیار کیا گیا تھا اس پر اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 59 ارب روپے کی لاگت سے شہر کی 115 میں سے 80 اسکیموں پر جو ہے وہ کام اب باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ ان میں 6 زونز میں سے جو 2 زون ہیں وہ سر فہرست دکھائی دیتے ہیں، جس میں داتا زون اور نشتر زون جو ہے وہ شامل ہیں۔ داتا گنج بخش زون کے اندر جو ہے وہ 960 کے قریب جو سڑکیں جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ان کو 3 ارب روپے کی لاگت سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ 23 ایسے کنٹریکٹرز ہیں جو اس میں جو ہے وہ حصہ لیں گے اور اس زون کے اندر ان سڑکوں کی تعمیر کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو نشتر زون کے اندر 2300 سے زائد ایسی سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں جن کو 12 ارب روپے کی خطیر رقم سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ نشتر زون کے اندر 40 اسکیموں کے اوپر بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ترقیاتی کام ہیں ان کو ای ٹینڈرنگ کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جو ہے وہ ٹینڈرز کیے گئے تھے تاکہ شفافیت کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو ان ترقیاتی اسکیموں میں ٹف سٹائل، PCC، واٹر سپلائی، جو سیوریج سسٹم ہے وہ بھی نصب کیے جا رہے ہیں، اور جو لائٹنگ ہے، جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کی بحالی کو بھی جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو راوی زون کے اندر تقریباً 29 اسکیموں کے لیے 5 ارب روپے کی لاگت جو ہے وہ مختص کی گئی تھی اور اس کے ذریعے کام شروع کروا دیا گیا ہے۔ 2 ارب 21 کروڑ کی لاگت سے شالامار کی بھی جو 13 اسکیمیں ہیں ان پر بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ مکمل پلان کی اگلے سال جو اس سال 25 جولائی تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام کام جو ہے وہ مکمل کر لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بسام، بہت شکریہ۔
अभी आपको बताएं, पीएमडीसी ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाजत दे दी है। यूएचएस समेत चारों सूबों की एमडी कैट इम्तिहान लेने वाली यूनिवर्सिटीज को मरासला भी जारी कर दिया गया है। सिंध, इस्लामाबाद एमडी कैट के दोबारा इनेकाद से मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले ताखीर से दो चार हैं। एमडी कैट इम्तिहान का इनेकाद मुकम्मल होने पर पीएमडीसी ने दाखिलों की हिदायत कर दी है। हजारों तलबा गुज़िश्ता 3 माह से मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले शुरू होने के मुंतज़िर थे, तो पीएमडीसी ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की बाकायदा इजाज़त दे दी है। यूएचएस समेत चारों सूबों की एमडी कैट इम्तिहान लेने वाली यूनिवर्सिटीज़ को मरासला जारी कर दिया गया है। सिंध, इस्लामाबाद के एमडी कैट के दोबारा इनेकाद से मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले ताखीर से दो चार हैं। एमडी कैट इम्तिहान का इनेकाद मुकम्मल होने पर पीएमडीसी ने दाखिलों की हिदायत कर दी है और हज़ारों तलबा गुज़िश्ता 3 माह से मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले शुरू होने के मुंतज़िर थे। और अब आपको बताएं कि पीएमडीसी ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में बाकायदा दाखिलों की इजाज़त दे दी है। यूएचएस समेत चारों सूबों की एमडी कैट इम्तिहान लेने वाली यूनिवर्सिटीज़ को इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में दर्जा दोम के चावल की कीमत में 25 रुपये इजाफा। करियाना की दुकानों पर चावल 250 से 275 रुपये किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। ओपन मार्केट में दाल चना की कीमत में भी 5 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। शहर की ओपन मार्केट के अंदर मुख्तलिफ अशिया खुरदोनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ दर्जा दोम के चावल और दाल चना की कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। जो दर्जा दोम के चावल हैं उनकी कीमतों में 25 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा जो दाल चना है उसकी कीमत 5 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ी है। और उसके बाद ओपन मार्केट के अंदर दाल चना की कीमत जो है वो 350 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। और जो दर्जा दोम के चावल हैं उनकी कीमतें 250 रुपये से लेकर 275 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान देखी जा रही हैं। और जो दूसरी किस्म का सेला चावल है दर्जा दोम का, उसकी कीमत 300 और 325 के लगभग जो है वो देखी जा रही है। तो मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। इसके बरक्स वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि महंगाई की शरह में खातर खा हद तक कमी हुई है, लेकिन इस महंगाई की शरह में कमी का फ़ायदा आम आवाम तक मुंतकिल नहीं हो पा रहा। और ओपन मार्केट से सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि एक जानब जहाँ पे मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानब हुकूमत के दावे जो हैं वो महंगाई की शरह में कमी के वो अपनी जगह है। अगर हकीकतन महंगाई की शरह में कमी हुई है तो उसका फ़ायदा जो है वो आम आवाम को भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं गुज़िश्ता साल 10,56,576 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर की गईं। महकमा एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन की मद में 16 अरब 73 करोड़ से ज़ायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया। एक्साइज हुकाम का इस हवाले से मजीद क्या बताना है, अली साही से दादो शुमार जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, एक तरफ तो शहरियों की जानब से महंगाई का रोना रोया जाता है, लेकिन अदाद शुमार देखे जाएँ तो इस गरीब मुल्क के बासियों की जानब से जो गुज़श्ता साल के दौरान गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड करवाई हैं वो 10 लाख से ज़ायद हैं। और ट्रैफिक में भी एक बड़े पैमाने पर ये इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में भी दुश्वारियाँ सामने आती हैं। एक्साइज हुकाम की जानब से जो डाटा बताया गया है उसकी बात की जाए तो गुज़श्ता एक साल के दौरान 10,56,000 से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पंजाब में रजिस्टर्ड हुई हैं। महकमा एक्साइज ने सबसे ज़्यादा जो हैं वो बाइक्स रजिस्टर्ड की हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 90% से ज़्यादा है और 9,28,893 बाइक्स लाहौर समेत पंजाब भर में रजिस्टर्ड हुई हैं। दूसरे नंबर पर मोटर कारें हैं जिनकी तादाद 77,165 है। ट्रैक्टर 23,826 रजिस्टर्ड हुए। रक्शे 10,935, 6,774 पिकअप्स रजिस्टर्ड करवाई गई, 4,184 वैगन्स, 1,500 बसें। एक्साइज हुकाम का कहना है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने नई रजिस्ट्रेशन की मद में 16 अरब से ज़ायद का टैक्स है। मुतादिद PAS अफसरान साल 2025 में रिटायर हो जाएंगे। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक 27 अप्रैल को रिटायर होंगे। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक जो है 27 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आजम जो है
ये 17 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। मोहम्मद साले अहमद फरूकी 25 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उमेरा अहमद 9 जनवरी को रिटायर हो रही हैं, 9 जुलाई को रिटायर हो रही हैं। जुल्फकार हैदर खान को 17 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टर शहजाद खान बंगश जो है 22 मई को रिटायर हो रहे हैं। नदीम अरशाद कैनी 14 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टर इफ्तार अली शलवानी 29 जून को रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचा 4 जून को रिटायर हो रहे हैं। इज्जाज असलम डार 5 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। तार खुर्शीद रुफ्ती के 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। अजफर मंजूर 26 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। हसन महमूद यूसुफ जई जो है 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। आलम सादिक कुरैशी जो है 19 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ये पीसीएस अफसर है। और पीसीएस अफसर शौकत अली 9 मई को रिटायर हो रहे हैं। पीसीएस अफसर नासिर इकबाल हुसैना जो है 30 मई को रिटायर हो रहे हैं। पीसीएस अफसर मोहम्मद इब्राहिम जुनैद 4 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। और मोहम्मद मसूद अनवर जो है ये पीसीएस अफसर हैं, ये 26 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब्दुल शकूर जो है ये 9 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। अहमद मुशाब करामत 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। ये अफसरान जो है 2025 में रिटायर हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोखर। लाहौर पुलिस का SHOs को मजीद बाइख्तियार करने का फैसला। लेन देन के मुकदमा के इंदराज के लिए SOPs तब्दील कर दिए गए हैं। क्या तब्दीली लाई गई है, इरफान मलिक से जानेंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर पुलिस की जानिब से SHOs को मजीद बाख्तियार करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि लेन देन के मुकदमात में SOPs के मुताबिक अब SHO जो है वो इसका जिम्मेदार होगा और लेन देन के केसेस के फैसले करके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना है या नहीं किया जाना, इसका फैसला अब SHO करेगा। इससे पहले आपको बताएं कि SHO के पास जो दरख्वास्त आती थी थानों में लेन देन के केसेस के हवाले से, उसके बाद वो दरख्वास्त जो थी वो DSP को मार्क की जाती थी और DSP के बाद SP उसके ऊपर दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ये फैसला करते थे कि ये मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। और इसकी वजह से बहुत पेंडिंग केसेस जो थे वो लाहौर में मौजूद थे। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से जो SOPs हैं लेन देन के मुकदमात की, उनको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से अब SHO जो है उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो कोई भी केस अगर उसके पास आता है तो वो डिसाइड कर सकेगा कि ये मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, और 24 घंटे में उसको ये डिसाइड करके आला हुक्काम को बताना होगा। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चले के मुताबिक SHO जो अगर झूठा कोई मुकदमा दर्ज करेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी SHOs के ऊपर होगी कि वो उसने झूठा मुकदमा दर्ज किया तफ्तीश में, अगर वो बेगुनाह लोग जो हैं वो साबित हुए। इसमें बेहतरी लाने के लिए जो वो जारी है और फैसल कामरान के मुताबिक। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं ठोकर न्याज बेग चौक 1 वे की खिलाफ वर्जी, रॉन्ग पार्किंग का रुझान यहां पर बढ़ने लगा है। ट्रैफिक वार्डन के सामने 1 वे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमें तलहा अशरफ। जी तलहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी है। ट्रैफिक कवानीन की खास तौर पर यहाँ पर जो खिलाफ वर्जी जारी है, यहाँ पर 1 वे की खिलाफ वर्जी भी जारी है और इसी के साथ साथ रिक्शे रोंग पार्किंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। जबकि ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद है मगर वो भी ये रिक्शे यहाँ से हटाने में से जो कि कासिर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो रिक्शे हैं रोंग पार्किंग की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। 1 वे की खिलाफ वर्जी की वजह से कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। जबकि शहरियों की जानिब से भी अपील की जा रही है कि मुसाफिर के सफ़र के दौरान ट्रैफिक का मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये रोंग पार्किंग की वजह से देखने को मिलता है, जिसको अभी तक हटाया नहीं जा सका। यहाँ पर बड़ी तादाद। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया।